Good morning students, Happy New Year all of you. Today we are to discussing the new chapter simple equations. The word variable means simple linear simple equations one variable. Equation in one variable or simple equation. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और सिंपल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ न्यूमेरिकल्स आर इक्वल एंड वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. द वर्ड वेरिएबल मीन्स सम थिंग्स दैट कैन वेरी, दैट मीन्स चेंज. दैट मीन्स वी कैन टेक एक्स वाई जेड एलिमेंट. वेरिएबल्स मतलब ऐसी वैल्यू जो हम जानते नहीं होते, अननोन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल we have to add variable in 5. Okay, so we have to take variable like m, n, y, z, any alphabetical number a, b, c, etc. So that is known as variable. And one variable, that means उसकी जो orders होती है वो only one statement में होती है. So variables are denoted usually by letters of the alphabet such as x, y, z, l, m, n, p, etc. From variables we form expressions. The expressions are formed by performing operations like additions, subtraction, multiplication and division on the variables. मतलब variable की जो value होती है वो different होती है, but we can't know that value. So variable's value is unknown. हम जानते नहीं होते. So in this unknown value we have to add something and getting an equation. For example, in y we have to take y variable, and in this y variable we have to adding 5 and getting 11. Okay, that is known as equation. Another, for example, normally simple linear equation जो होते हैं वो उसके अंदर only one solution obtain होता है, बराबर, not more than that. So for example, the value of the expression 10y minus 20 depends on the value of y. For example, suppose there is यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 10y minus 20. अब y के अंदर हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं. सपोज y इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी हर एक के अंदर जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड होगा. मतलब जो भी y की जो वैल्यू होगी वो हमको देखनी है. तो किसके अंदर अगर हम ऐसा करते हैं 10y minus 20 इज इक्वल टू 50 आंसर आता है. ओके, तो वी हैव टू कंसिडर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. तो अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो 10 3 जा 30 minus 20 तो यहाँ 10 आ रहा है. अगर y इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, इक्वेशन का आंसर 10 आ रहा है. 10 4 जा 40 minus 20 तो यहाँ 20 आ रहा है. y इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो 50 minus 20 तो 30 आ रहा है. y इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं तो 10 6 जा 60 minus 20 तो 40 आ रहा है. y इज इक्वल टू 7 ले रहे हैं तो 70 minus 20 तो 50 आ रहा है. दैट मीन्स इफ वी हैव टू टेक y इज इक्वल टू if we have taken y is equal to 7 and this 7 we have to add here, तो 10 7 जा, तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा 10 7 जा 20 minus 70 minus 20 is equal to 50. Then our equation is satisfied. So are you understanding? So we have to take here y is equal to 7. Second, write at least one other form for each equation. 5p is equal to 20. Try this trick number 80. कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि write at least one other form for each equation. हर एक इक्वेशन के लिए आप दूसरा एक फॉर्म लिखो. तो 5p is equal to 20 ऐसा लिखा है. 5p is equal to 20. Okay, so 5p is equal to 20 means when a number p is multiplied by 5 then the product is equal to 20. मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई p विद द हेल्प ऑफ 5 द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो 20 के इक्वल होगी. दूसरा 3n plus 7 is equal to 1.
That means we have if we have to take n variables and that n variables is multiplied by 3 times and then 7 is added, the sum is 1. मतलब ऐसा होगा कि अगर हम n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी. देन m/5 -2 is equal to 6. If we have taken m variable, अगर हम m वेरिएबल लेते हैं and the m variable is divided by 5 and in this variable we have to minus 2, that value is equal to 6. या तो ऐसा भी बोल सकते हैं when 2 is subtracted from 1/5 of the number m we obtain the difference is 6. तो उस तरह हम हर एक इक्वेशन को इस तरह हम बोल सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. अब एक्सरसाइज 4.1 के अंदर ऐसा लिखा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. टेबल का लास्ट कॉलम कंप्लीट करो और उसमें ऐसे टेबल दिया है सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू एक्स और से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड. मतलब आपकी जो भी इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है. तो फर्स्ट यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू दी है 3. अगर हम x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो ये यहाँ पे अगर 3 रखते तो ये जो LHS और RHS है वो दोनों सेम आने चाहिए, बराबर. तो 3 + 3 इज इक्वल टू 0. तो 6 इज इक्वल टू 0. नो 6 और 0 की वैल्यू सेम नहीं आ रही, डज नॉट इक्वल टू. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है. फिर x + 3 इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन है पर यहाँ x की वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी है. x इज इक्वल टू 0 रखना है. तो यहाँ हम x बराबर 0 रखते हैं तो 0 + 3 इज इक्वल टू 0. तो 0 + 3 तो 3. ओके 0. तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है. ओके क्योंकि 3 और 0 की वैल्यू दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए. तो क्या हो सकता है, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकता है. तो ये भी नहीं है, नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. अब x + 3 इज इक्वल टू 0 सेम है. अब x इज इक्वल टू 0 की जगह पे रखना है -3. -3 + 3 तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0. तो 3 में से 3 जाएगा 0. इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो ये वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं. फिर x - 7 इज इक्वल टू 1. अनदर इक्वेशन इज दैट x - 7 इज इक्वल टू 1 और उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 7. वी हैव टू पुट द वैल्यू x इज 7. तो 7 - 7 इज इक्वल टू 1. तो 7 - 7 तो 0. 0 की वैल्यू और 1 की वैल्यू बोथ आर नॉट इक्वल, सो डज नॉट इक्वल टू. इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड. x - 7 इज इक्वल टू 1. इक्वेशन सेम है. x इज इक्वल टू 8. हम 8 ही रखते हैं सपोज बाय. तो 8 - 7 तो 1. तो बोथ इक्वेशन आर इक्वल, बराबर. फिर 5x इज इक्वल टू 25. तो 5x इज इक्वल टू 25 के अंदर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं. तो x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ 0 रख रहे हैं तो 5 0 = 0. तो 0 और 25 की वैल्यू नहीं इक्वल है, सो नॉट सेटिस्फाइड. अगर हम x इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो 5 5 = 25. तो बोथ आर इक्वल. तो राइट इक्वेशन m/3 इज इक्वल टू 2. ओके और उसमें m की वैल्यू -6 रख रहे हैं. तो 3 2 = 6, बराबर. तो यहाँ आंसर आ रहा माइनस में, तो नॉट इक्वल. अगर हम m/3 इज इक्वल टू 2 उसमें अगर 0 रख रहे हैं तो 0 अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा. नॉट सेटिस्फाइड. ओके देन नेक्स्ट m/3 m अगर 6 को यहाँ m की वैल्यू 6 कर देते तो 3 2 = 6, देन वैल्यू इज सेटिस्फाइड. तो अगर हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स के वेरिएबल्स को अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर एक के अंदर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है. जिसमें दोनों LHS और RHS वैल्यू सेम हो तो उसके अंदर इक्वेशन
ये होता है। सेकेंड एक्सरसाइज है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू दी है ब्रैकेट के अंदर वो इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सेम इसी टाइप का है और थोड़ा बड़ा इक्वेशन दिया, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। एक दो बता देती हूँ आपको सैंपल। n प्लस एग्जाम्पल n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। सो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 9। तो 6 एंड 19 बोथ आर नॉट सेम, सो n की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। ओके तो आपको ऐसा लिखना है कि n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दैट इक्वेशन। अगर हम दूसरा एक इक्वेशन ले रहे हैं, माइनस वाला लेते हैं, 4p माइनस 3, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे p की वैल्यू आपको रखनी है 1 और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं वो चेक करना है। 4 1 जा 4, 4 minus 3 is equal to 13, so 1 is equal to 30. So 1 and 13 both are not equal, so this equation is not satisfied with the value of 1. 7n plus 5 is equal to 19. Second example. Seven n plus 5 is equal to 90। अब यहाँ n की जगह आपको 2 रखने हैं, बराबर। तो 7 2 जा 14। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 19 is equal to 19. Equation is satisfied. So n is equal to 2 variable is satisfied with that equation. तो इसी तरह आपको एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करनी है। Then exercise number 3, solve the following equation by trial and error method। मतलब आपको क्या करना है कि ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू नीचे की इक्वेशन को सॉल्व करना है। सपोज यहाँ पे इक्वेशन दिया है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू आपको खुद को रखनी है, ट्राई करते जाना है, और अगर एरर आए तो वापस से ट्राई करो, वापस से एरर आएगी तो वापस। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सपोज p इज इक्वल टू हम लेते हैं 0 1 2 3। हम ओरली सॉल्व कर रहे हैं अभी। अगर हम 5p की जगह पे 0 तो 5 0 का 0, 0 प्लस 2 17, तो नई सॉल्यूशन। तो थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा 17 कब आएगा। अगर हम 5 3 जा 15, p की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो ऐसा होगा, बराबर। तो इफ वी आर टू टेक p इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, बराबर। फिर सेकेंड है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर 14 लाना है तो आप n की वैल्यू उसी तरह 0 1 2 3 इस तरह कंसिडर करते जाओ, बराबर। अब 14 लाने हैं तो हम 3 2 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 14 नहीं आएंगे। दैट मीन्स n की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। 3 6 18, अगर हम n की वैल्यू 6 ले रहे हैं तो 3 6 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो 6 18, 18 माइनस 4 is equal to 14, that means equation is satisfied। तो उसी तरह आपको चेक करते जाना है। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया और आपको इक्वेशन खुद लिखना है, राइट डाउन करना है। इक्वेशन नहीं दिया, वर्ड में दिया है, बराबर। एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर स्टेटमेंट दी है पर इक्वेशन नहीं दिया। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। कि अगर हम x और 4 का सम करते हैं तो क्या आता है 9। x, अगर नंबर x दिया है और उसके अंदर सम करना है तो सम मतलब प्लस की साइन आती है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट आंसर। सेकेंड, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अगर हम y वेरिएबल में से 2 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब, तो कितना आंसर आता है 8।
थर्ड है 10 टाइम्स ए इज 17। अगर हम ए को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 10a इज इक्वल टू 70, तो उसका आंसर आता है 70। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 70। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, अगर b नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, बराबर, b कोई नंबर है, वेरिएबल है, उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो ये जो आ रहा है उसका वेरिएबल वो 6 के आंसर के बराबर है। b/5 इज इक्वल टू 6। 3/4 ऑफ t इज 15। अगर हम t वेरिएबल का 3/4 पार्ट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है? 15 के बराबर होता है। 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। फिर नेक्स्ट है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। अगर हम m 7 टाइम्स m को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर कितने प्लस करने हैं? 7, मतलब प्लस की साइन करनी है। तो उस अगर हम ये दोनों का प्लस करते हैं 7 टाइम्स m एंड प्लस 7 तो कितना मिलता है? 77। 7 टाइम्स m लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? 7m प्लस उसमें कितना ऐड करना है आपको? 7। तो हमको कितना आंसर मिलता है? 77। 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1 मिनट। वन फोर्थ ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर x। अगर हम x का 1/4 नंबर ले रहे हैं, ओके, और उसमें से माइनस कर रहे हैं 4, तो हमको कितने मिलते हैं? 4। ओके, तो इस तरह आपको इक्वेशन सॉल्यूशन करना है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y मतलब 6y, और उसमें से टेक अवे मतलब माइनस करना है। 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 16, और 1/3 z प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो इजी है। अब यहाँ पे p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, इसको आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? द सम p प्लस 4, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। द 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। द 2 टाइम्स m गिव्स 7। अगर हम या तो 2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7। 5th पार्ट ऑफ द m गिव्स इज इक्वल टू द 3। तो उसी तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 6 है वो आपको आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी, ताकि उसके जो रिलेटेड सम्स हो वो भी आपको समझ में आ जाए। तो ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो नोटबुक में नोट डाउन करना है। Okay, so regular classes is continue from the today. Thank you.